Chapter number 7, cubes and cubes roots, right? You are very too much familiar with this cube. Cube is a solid shape which have equal sides. Suppose it has equal sides 3, 3, 3. 3 is, this side is 3, this side is 3, and this side height is also 3. If I say about the volume of this cube, that means it is 3 into 3 into 3. I can write this like this. So a cube is a solid figure which has all sides of equal length. The cube of a number is that number raised to the power 3, right? In other words, if a number is multiplied 2 times with itself, then the product of the multiplication is called the cube of the number. तो किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें सेम नंबर को, तो जो हमको मिलेगा नंबर वो उसका क्यूब होगा, ठीक है। और क्यूब रूट जो होगा, क्यूब रूट का साइन ऐसा होता है, इसका क्यूब होगा 3 3 9, 3 27. इफ आई से अबाउट द क्यूब रूट ऑफ 27, इट विल बी 3, ठीक है। तो ये क्यूब रूट इस तरह से निकाला जाता है। Here we have a table. The square cube of 11 is 1331. Similarly, the cube of 12, cube of 13, cube of 14, 15 to cube of 20 we have table. And we have some points about the cube root. First point is cubes of all even natural numbers are even. Cubes of all even natural numbers are even. अगर आप even नंबर का क्यूब करेंगे तो वो even ही आएगा. Suppose if you are writing the cube of 12, then it is even number and it is also even number. And the second point is cubes of all odd natural numbers are odd. Suppose the cube root of 13, cube of 13 is 2197. So it is odd number. And third rule, the sum of the cubes of n natural numbers is equal to the square of their sums. That means 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot dot dot, and it will become n cube. It will become 1 plus 2 plus 3 dot dot n whole square. तो अगर क्यूब्स का हम एन नेचुरल जो कंजुगेटिव क्यूब्स का हम ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, उन नंबर्स के स्क्वायर के बराबर होगा. Now fourth is cubes of the numbers ending in digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9 are the numbers ending in the same digit. That means अंत में अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो उनका जो क्यूब करने पर भी डिजिट वन से डिजिट वही नंबर आएगा. सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस 4 into 4 into 4. One's place of cube is 4 and the number was also 4. तो ये जो भी आपके नंबर हैं इनको अगर क्यूब करेंगे तो आपके क्यूब रूट के वंस प्लेस में भी वही नंबर आएगा. नाउ फिफ्थ, क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 2, digit 2 ends in digit 8 and vice versa. क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 2, जिसके लास्ट में 2 हुआ उसका जो क्यूब आएगा वो हमेशा 8 आएगा. अगर 8 होगा तो 2 आएगा. सपोज क्यूब ऑफ 12, यहाँ पर लास्ट में 2 है तो इसका क्यूब में आएगा 8. अगर नंबर 8 है खुद तो उसके क्यूब में आएगा 2, ठीक है. वाइस वर्सा ये रूल फॉलो होगा. सिक्स्थ रूल, द क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 3 and 7 end in digits 7 and 3 रिस्पेक्टिवली. जिस भी नंबर के एंड में 3 होगा तो उसके क्यूब में क्या आएगा, 7 आएगा.
अगर 7 होगा तो 3 आएगा। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 3 का क्यूब किया तो लास्ट में क्या है 7 आया। अगर 7 का क्यूब करोगे cubes of negative integers are negative. If we make cube of negative integer, it comes ever negative. किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे वो हमेशा उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूब ऑफ अ नंबर which ends in 0 ends in 3 zeros. कभी भी किसी का भी क्यूब अगर होगा जिसमें 1 0 होगा तो उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा 3 0 के साथ एंड होगा। ठीक है। Now last point is there are only 3 numbers whose cubes is equal to the number. 3 ही नंबर के ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब सेम वही नंबर आता है। 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। So these rules are very important. Now I'm going to start with exercise 7.1. Question first. Which of the following numbers are not perfect cube? How can you check the numbers are not perfect cube? At first you will make prime factors of this given number. So these are the prime factor of the given numbers, and we will make this kind of group of numbers. The group of 3 digits, 3 numbers like this. Then you can say the cube root of 216 is 6. So it is perfect cube. Similarly, you can check the other numbers which have triplets of any number. It will become perfect cube. Otherwise, it will not become a perfect cube. Suppose I am taking 100. जब हमने 100 के प्राइम फैक्टर किए तो हमको क्या मिला कि इनके पेयर तो मिल रहे हैं बट ट्रिपलेट्स नहीं मिल रहे, 3 नंबर नहीं मिल रहे हैं। एक 2 यहाँ कम है और एक 5 यहाँ कम है, तो ये 100 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अदर नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। फॉर दिस यू हैव टू प्राइम फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। After prime factorization, what we see, we have triplets for 3, but we don't have triplets for this 3. एक 3 यहाँ कम पड़ रहा है, तो हम अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 729। द क्यूब रूट ऑफ 729 इज 3 का पेयर ये था, और एक 3 हमने यहाँ पर और ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 3 को हम लिख सकते हैं, तो एक 3 होगा तो 9। तो 9 का क्यूब होगा 729। तो इसमें जो नंबर आपका कम पड़ेगा ट्रिपलेट्स बनाने में, तो उसी नंबर को आप उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली अदर पार्ट यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें आपने किस नंबर से डिवाइड करना है कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर करेंगे। एट फर्स्ट विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 128। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट्स, देखिए ये ट्रिपलेट्स है, ये ट्रिपलेट्स है, यानी एक 2 फालतू आ गया है। अगर ये 2 यहाँ पर नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यानी कि यहीं आपने क्या करना है, इस 2 को हटाना है, तो यानी कि 128 में 2 से डिवाइड कर देना है। एक 2 को हटाने के लिए इस 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 2 4 यानी 64 आ जाएगा। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। Similarly, you can solve the rest part of this question. It's all about this video. Next video, we will solve the rest part of this exercise and this chapter. Till then, take care and have a nice day.